and I'm thankful to both of you for giving me this opportunity. और बहुत I mean मेरी दुआ है कि गाने तो अच्छे हो ही हो, ये फिल्म बहुत अच्छी आगे बढ़ती जाए और हम साथ में ऐसे ही काम करते जाए. And Junaid, a few words. Hello everyone. I mean this is so unreal for me क्योंकि ये एक सारा एक ड्रीम था मेरे लिए कि बचपन से ऐसे मूवीज देखना थिएटर में और किसी सडनली ये गाना चल रहा है और उस चीज़ से इतना फैसिनेट होना कि यू नो दिस वाज अ ड्रीम फॉर मी कि एक मूवी में खुद का ऐसा गाना सुनूं. इवन आई हैव यू नो वर्कड अ लॉट, स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड फाइनली यू नो किस्मत ने कुछ दोस्तों को मिला दिया. एंड देन आई मेट रिमी एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली कॉलिंग मी एंड making me sing this song. And you know, and thank you so much Pallavi ma'am, thank you so much, you know, sir. And I mean I can't thank enough to whole match fixing team. Like I'm just lost words, seriously. Thank you so much. Thank you. I'll say a few words about Junaid. Junaid is a very fresh voice in our industry and he is doing actually fabulous. और इस गाने की किस्मत बहुत अच्छी है Junaid कि तुम्हारी आवाज़ मिली है. And Pallavi ma'am, I'm really thankful कि आपने इतना मुझ पे विश्वास रखा. And a few words both of you for this song, please. I think having Rimi for this was a wonderful experience. मतलब Rimi is so full of energy कि जैसे केदार उसे ब्रीफ देता था वो रात को सोती नहीं थी. Can I tell the story of the second song? Second song, I was in Delhi in the morning. I landed and okay. Of course. मिलती है दो खुशियाँ नसीब से, मिल जाए तो रख ले करीब से. आशियाना मेरा भी था, एक आशियाना मेरा भी था. Thank you sir. Thank you sir. दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगी कि हब्बा कडल श्रीनगर की वादियों से जुनैद प्यार का पैगाम लेकर निकले हैं, जो चाहूँ और पूरे हिंदुस्तान में वो प्यार का पैगाम उस हसीन वादियों में पहुंचाना चाहते हैं. और जिस हसीन वादियों में आपने अभी एक मिलिट्री ऑफिसर को आशियाना गुनगुनाते हुए सुना है, इन्होंने गाना डाल दिया था. So wish you all the luck and all the best. Can we felicitate both of them? I would request Pallavi ji and Kedar ji to please present them with bouquet of flowers. This is our way, Art Arena Creations Private Limited way to say thank you for producing and giving us such a beautiful music. ताकि सभी लोग गुनगुनाएं और ये Spotify पर ट्रेंड करे. उसके लिए हमारे मीडिया के जो हमारे मीडिया के हमारे गेस्ट हैं, आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि ये जो ऑफ बीट इस तरह की फिल्म है जो पूरे प्रेम, त्याग, समर्पण और भारतीयता को उकेर रही है, उसे थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोशन कीजिएगा ज़रूर. Remember it, 10th January is the D-date. It is going to be releasing on 10th January. Note it down. Thank you so much. Thank you so much. Yes. मुझे ऐसा लग रहा है कि पल्लवी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म का कश्मीर से लेके कुछ ना कुछ कनेक्शन था. मतलब we were advised by many, set off for the recce. We went to Kashmir, we fell in love with Kashmir. It was my first time in Kashmir last year, and then we went to other parts of North India, other states, and both me and Pallavi looked at each other and we realized, we came to know, we did not have to say a word.
we just looked at each other and we knew that Kashmir is the location. Okay, Kashmir is heaven. भारत का ऐसा एक अंग है कि जिसको when you go there, you fall in love with that part. And when it came to the song, another coincidence, Junaid came and sung the scratch of this song, and we were contemplating on कौन होना चाहिए final गाने का singer, and then we realized that somewhere that thing clicked, that Kashmir और इस सिनेमा का relation कुछ बहुत गहरा है. Everybody who's sitting here and who's shot in Kashmir, right from Vinit sir to Ramanjit, will realize that how beautiful it was. So it was wonderful to have you. Me and Rimi and Pallavi had this discussion and we decided that Kashmir का कुछ गहरा connection इस film के साथ है, तो why not Junaid? So that is how we decided. Junaid has to sing. So congratulations Junaid, and he has done a fabulous job. It brings goosebumps on each and everyone. Thank you so much. Thank you. कश्मीर की वादियों का संगीत से वैसे ही ताल्लुक. केदार इज नरेटिंग, तो वी वर ऑल वेटिंग कि नहीं केदार का जब हमें ब्रीफ मिलेगा उसके बाद वी विल स्टार्ट राइटिंग. बट इस गाने में मेरा बहुत ज़्यादा कुछ इनपुट ऐसा था नहीं, क्योंकि एक लिरिसिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी होता है उस हुक को क्रैक करना जो इसने ऑलरेडी कर रखा था. तो एंड आई वाज टोल्ड दिस स्टोरी, मुझे कहानी मालूम थी, मेरे पास हुक था, तो गाना क्रैक करना मुझे मतलब बहुत छोटी सी बात हो जाती है फिर. तो बट आई एम थैंकफुल टू रिमी, केदार एंड पल्लवी जी फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड दिस मूवी, एंड आई विश एवरीबडी हियर a great success, the crew, Vinit sir, everybody here, all the very best, and maybe have a very hit film from here. Your take on it. She's being very modest. She herself has written so many hit songs. Recently she wrote a song for Bhool Bhulaiya 2, and then Mere Dholna ka reprised version जो है written by her. So we have a very talented woman right here. तो बहुत modest बन रही हो बहन तुम. मतलब इस स्टेज पर सब सेलिब्रिटीज तो हैं ही, isn't it? Your take, Prashant. Well, hello everyone. तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, जब ब्रीफ मिला था मुझे कि रिमी ने बोला था कि देशभक्ति वाला गाना है, तो जहाँ देशभक्ति की बात है तो हम कूद पड़ते हमेशा, और बहुत ही मज़ा आया था जब गाना रिकॉर्ड हुआ था. और एक बात और थी इसमें कि इस मूवी का जो कैरेक्टर है, जो महाराष्ट्रियन कैरेक्टर है, और मैं खुद मराठा हूँ, तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो मराठी मैंने गाया है दिलेर सर के साथ, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया गाने में. अरे यार थोड़े लिरिक्स के बिल्कुल सॉरी, लिरिक्स थोड़े से उठ मराठा मर्द मावळा रान झालजी, शूरवीर तू मर्द मावळा रान घालजी, जी 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 रान झालजी, जी 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 हो. थँक यू. Thank you so much once again, Pallavi ji. Okay, felicitate them with a bouquet of flowers. But उससे पहले आपकी बारी. So felicitation के पहले I want to tell the story about this song. This song was planned later on in the film. हमने situation shoot कर लिए थे पुणे में, and we thought that I wanted to put a bomb on producer that the situations are too many and we require a song over here. She graciously accepted. I gave the brief to the ladies and they jumped in. And one night when, sir, you remember we had a longest night, 12:01 we packed up, and this lady calls me in the middle of the night and I'm half dead, and she tells me that बहुत जोर का गाना आया है. मैंने बोला यार तू पका मत, अभी छोड़ दे, कल देखते हैं मॉर्निंग में. But when I woke up in the morning for the next day shift, the scratch was ready.
I shared it with Vinit ji, I shared it with Pallavi ji, and both of them just loved it. They started humming it. That is how this song was born. And thank you Prashant, thank you Saveri for jumping in. Thank you Rimi. Thank you so much. उनके उसमें ये सारा डिसीजन केदार का है, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि केदार प्लीज़ ये हक तुम्हारा है। नहीं प्लीज़, मैं पीछे खड़ा रहूँगा डायरेक्टर के, प्लीज़ कम सी। हाँ मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू। एंड रिमी, मुझे ना मतलब हम लोग कड़कड़ाती ठंड में शूट कर रहे थे लखनऊ में, और शिफ्ट भी बहुत लंबी थी। थैंक यू। शिफ्ट भी बहुत लंबी थी क्योंकि जब आधी रात में कोई चीज ऐसी कह रहा है कोई, तो कुछ तो भी है जो बहुत स्पेशल है। जस्ट पुश है, एंड ही ऑलवेज पुश। हमेशा हम लोगों को वो रिजल्ट मिला। थैंक यू सो मच रिमी, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और First of all, sorry, my throat is really bad. I would really like to thank Pallavi and Kedar for making me a part of this important film. I have always been fortunate, very, very fortunate that I'm always a part of something very important, you know, which gives a message, which tells you the history or the series of events that are necessary to be told. So, you've already seen मेरा character क्या है. You already know that I am playing Mrs. Anuradha Patwardhan, the wife, the army wife, and the Kedar. I would say Kedar का brief ही इतना perfect था, and he really wanted the wife to be a very, very strong woman. You saw that snippet जहाँ पे I'm talking to him before the song starts, and both of them, Pallavi and Kedar, did not want me to cry at all, and that is how strong that character is. So that's it. Thank you very much. थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आपने आंखों से कैमरे के जरिए बहुत कुछ कह दिया। मैं आपका सम्मान करने के लिए लेट अस वेलकम Pallavi Gurjar ji once again to please present her with a bouquet of flowers and also a 2 words. How did you deal with a actress? बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मुझे पता है इन्होंने जितना आसान बनाया, इन्होंने उससे ज़्यादा आसान बना दिया होगा। Your take. Anuja did a fantastic job. She was so, मतलब वो takes देती थी. I was not on the scene many times, but whatever I saw later on, I think Kedar will tell much better. But she did a fantastic job and it was very easy to work. She used to be very fast on the, मतलब साड़ी पहननी है. In one song, if you see, there were so many changes and we had to shoot it in only one day. And there were so many changes and she used to so fast change and come and be ready on the set. So enthu on the set, and she did a fantastic job. It was very, 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 very easy working with her, I should say. Very easy working with her. Thank you so much. Let us give it a 4. And just take
just take. I call another artist. वैसे हीरो हीरोइन को तो सब चाहते हैं, लेकिन बैडमैन को कौन कौन चाहता है यहाँ पर? अरे क्या बात है, क्या बात है. So let us have the Batman on the dais. राज अर्जुन जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से ये किरदार को निभाया है और किस तरह से निभाया है, आप आइए उन्हीं से सुनते हैं. वेलकम. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मुझे लगता है मेरी बालों और मेरी दाढ़ी ने एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है बैटमैन की. पल्लवी से पूछते हैं मैं बैटमैन हूँ क्या फिल्म में? In the film, he is playing the character Colonel Imam, but he, in spite being from Pakistan, he is actually a very sensitive guy. He's a very sensitive guy, even on the screen and even off screen. Is that what I can see? He's my wonderful friend. He's my wonderful friend. He stood by me the moment I read this book. I read this book and I saw this thing, Colonel Imam. I called him कि तुम जनवरी में क्या कर रहे हो, कोई काम मत लेना. I have thought of something, so please keep tight for me. And then I told him that you are doing Colonel Imam, and Kedar agreed to it. I and Kedar went to meet him first time. We were waiting down in a lobby, and he came. And जैसे ही वो ऐसे चल के आया, केदार बोला यही कर्नल इमाम है. This is a perfect thing for Colonel Imam. And that is how he was in the part of the film. Thank you so much. तो मेरी पुरानी फिल्मों को रिलेट करके आपने शायद ये गैस कर लिया कि मैं नेगेटिव हूँ या विलन हूँ. एक्चुअली कोई भी कैरेक्टर नेगेटिव या विलन होता नहीं है, वो सिर्फ साइकोलॉजी का खेल होता है. वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा होता है. वो तो ऑडियंस है या पब्लिक है, वो उसको एक ग्रे शेड में या ब्लैक शेड में या वाइट शेड में देखती है. थैंक यू सो मच. और एक और एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया है. मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ उन्हें बुलाऊंगी. एलियाना टुटेजा, प्लीज वेलकम हर ऑन द डाइस. Your take about this beautiful character that you have played. हम यहाँ पीछे देख रहे हैं ये तस्वीर उनकी. यस, वास्तविकता में बहुत डिफरेंट लग रही है, बट यस, योर टेक. व्हाट वुड यू लाइक टू से? सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी केदार जी को, पल्लवी जी को, कि मुझे यहाँ पे इस मूवी में किरदार निभाने को मौका दे दिया. और यहाँ मैं आप लोग देख सकते हो ये मैं ही हूँ. मैडम जी का कैरेक्टर मैं ही निभा रही हूँ. और क्योंकि पहचान नहीं पा रही हूँ, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए हमारी मेकअप आर्टिस्ट को, जिन्होंने ट्रेमेंडस वर्क किया मेरे ऊपर. एंड ऑफ कोर्स केदार जी, जिन्होंने मुझे हेल्प किया ये कैरेक्टर में घुसने के लिए. वैसे मैंने ये सेम कैरेक्टर, मतलब सेम बेस्ड कैरेक्टर मैंने किया है पहले, सो इट वाज अ बिट इजी, बट इट वाज टोटली डिफरेंट इन दिस मूवी. सो यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और मैं तो ये फूल, यस, यू वुड लाइक टू से. For the makeup, we have Vijay Shikhareji here. Thank you very much for he did a wonderful job for this film. And we have Krishna Thakurji also, our art director. Thank you so much. The cameraman who has shot the film so beautifully. एक अलग ही तरीके से कश्मीर को दिखाया है पर्दे पर. Is he around here? ओके ओके. कैन वी हैव द, और एक और एक्ट्रेस को हम बुलाना चाहेंगे, रमनजीत कौर जी. प्लीज कम ऑन द डाइस. योर टेक. आपने जो खूबसूरत किरदार निभाया है उसके बारे में बताइए. Namaskar. Thank you so much, Pallavi and Kedar. I hope he comes in fast. I have always played in theatre and films. It's more than 3 decades now.
international collaboration films I've done. So this is my first Bollywood, and I've always played the good role, you know, the tragic queen and the good role. So I'm very happy that I'm playing a different role. I wouldn't say anything else, but I would say different role of a very important character that plays a very important part in the narrative. And I hope आप सबको पसंद आएगी. जो भी अलग अलग कहानी के पहलू इस पूरे टाइम में गुजरते हैं. And I feel very privileged to be a part of a film where जहाँ सभी actors इतने उम्दा हैं, राज अर्जुन, अनुजा, विनीत, एलिना and मनोज जोशी जी खुद अभी अभी पहुँचे हैं. बहुत privilege, honor feel होता है कि मेरी पहली फिल्म चाहे छोटा रोल है पर आप सबके साथ शुरुआत हुई. So बहुत बहुत शुक्रिया केदार का और पल्लवी जी का कि मुझे इसका हिस्सा बनाया. Thank you. Thank you so much. Pallavi ji, can you give the bouquet of flowers to all our artists? और दोस्तों, can we have a keep clapping? शोर होना चाहिए मैच फिक्सिंग के लिए. Yes, please stay back. दोस्तों, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास को स्मरण कराते हैं और वो पूरे इतिहास को, भारतीयता को स्वर्ण अक्षरों से, स्वर्ण पन्नों से अपनी यात्रा को लिखते हैं. चाणक्य से शुरू हुई यात्रा मुशर्रफ तक और आगे न जाने कितनी फिल्में, थिएटर, मराठी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, सब में यकसा उसी तरह से प्रस्तुति देते आ रहे हैं और हर किरदार को उसी तरह से जीवंत करते आ रहे हैं. एक एक डायलॉग को पिछले 35 वर्षों से 1700 से भी ज्यादा शो चाणक्य का करने वाले हम सभी के लाडले प्रिय अभिनेता मनोज जोशी जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत. और इस मंच पर हालांकि उन्होंने मुशर्रफ का किरदार निभाया है. वेलकम. क्या बात है. आज तो आप मनोज जी, आज तो आप बिल्कुल अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं. ये बताइए, ये मुशर्रफ के रंग में आने के लिए पापड़ तो आपको बेलने नहीं पड़े, लेकिन आपको डंडे पड़े क्या? नहीं, पापड़ तो नहीं बेलने पड़े. एक्चुअली पहली बार जब केदार और पल्लवी जी मेरे घर आए और मुझे लगता है उन्होंने अभी तक कास्टिंग शुरू नहीं किया था और पहला ही कास्टिंग उन्होंने मेरा किया और मेरे घर आए. मुझे इतना ही कहा कि हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं. तो मैंने कहा हाँ ठीक है. बोले थोड़ी पीरियड फिल्म है. पीरियड मतलब 2003-4 से लेकर अभी तक की. विषय तो नहीं बताया. मैंने कहा, वो बोला ये कैरेक्टर है करके उसने फोटो बताया, मेरा फोटो और मुशर्रफ का फोटो. तो मैं एक चौंक गया. मैंने कहा अभी अभी मैं एक मराठी फिल्म की है जिसमें भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का रोल करके आया हूँ, यूपी फाइल करके आया हूँ. अभी डायरेक्टली तुम मुझे दे रहे हो मुशर्रफ. तो मैं बोला क्या है, क्या स्टोरी क्या है. उसने पूरी स्टोरी मुझे नरेट की और कर्नल खटानाजा की बुक जो है सेफ्रॉन टेरर, वो मुझे दी पल्लवी ने और मुझे कहा आप पढ़ लेना. बोला ठीक है. मैंने तो तुरंत हाँ बोल दी जैसे ही मैंने नरेशन सुना. और बस फिल्म आपके सामने है. बहुत केदार ने अद्भुत डायरेक्शन किया है और मैं पल्लवी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि एक सिंगल प्रोड्यूसर, आज तो स्टूडियो का ज़माना है, कॉरपोरेट सेक्टरों का ज़माना है और
फिल्म्स किस प्रकार की बन रही हैं इस विषय पर मैं नहीं बोलूँगा, बट एक अच्छी फिल्म बनाना और एक सिंगल प्रोड्यूसर ने बनाना आज की तिथि में बहुत चैलेंजिंग है। और इसलिए मैं उसको सैल्यूट करता हूँ प्रोड्यूसर पल्लवी गुर्जर को और केदार गायकवाड़ को कि इस तरह से मार्केट में आना। क्योंकि देखो बड़ी फिल्म होती हैं, फिर उसका वो अच्छा अगर सब्सटेंस है तो चलती है, बट उसका भी क्या होता है, कितना भी प्रमोशन करो, बट अगर सत्व नहीं है, कंटेंट नहीं है, बात में बात नहीं है, तो वो फिल्म कुछ मायने नहीं रखती। ये हम देख रहे हैं। तो कंटेंट के साथ और इतने जबरदस्त कलाकार, भाई साहब ने क्या काम किया है यार, आई लव यू, ही जस्ट रॉक्ड इन द फिल्म। इवन विनीत ग्रेट काम किया है। मैंने कल ही पूरी फिल्म देखी और ऑफ कोर्स अनुजा यू डिड अ एक्सेलेंट जॉब। मतलब इतनी होल्ड और कमाल, मेरी फिल्म है इसलिए नहीं बखान कर रहा हूं, बट एक चीज, और क्यों की फिल्म ये, तो ये इसलिए क्योंकि इस प्रकार के झूठे नैरेटिव फैला के अंदर के भाई भाई को लड़ाना, ये काम सत्ताधीश किस प्रकार से करते थे, और फिर एक झूठे नैरेटिव को वाचा देना कि भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद है, इस प्रकार से सिर्फ कुर्सियों पर बैठने के लिए इस प्रकार से देश को स्टेक पर रखना, ये प्रकार के खेल खेले जाते थे। और ये उजागर होना बहुत जरूरी है, और ये काम इस लड़की ने किया है, इसलिए मैं इसको सैल्यूट करता हूं। और केदार ने इतना अद्भुत दिग्दर्शन किया है, इतना अद्भुत निर्देशन किया है कि पूरी फिल्म आपको विचार का अंतर्मुख करती है और आपको इतना टच करती है कि बॉर्डर पे संरक्षित करने वाला पूरी कंट्री को, पूरे देश को आंखों में मतलब बिल्कुल नींद न आते हुए हम लोग सुख से सोते हैं और वो वहां जगते हैं। और एक संदेश इस फिल्म से मिलता है कि हमारे देह और भगवान के बीच में देश आता है, ये संदेश है इस फिल्म का। तो हर राष्ट्र प्रेमी ने, हर भारतवासी ने, हर भारत के नागरिक ने ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। और मैं माध्यम को बोलता हूं कि माध्यम, आप लोग चौथा स्तंभ हो, और चौथे स्तंभ का ये भी काम है कि अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आपका काम है। ये कोई बड़ी, मैं इसलिए बारंबार बोलता हूं कि इतना मार्केटिंग और करोड़ों रुपए का मार्केटिंग हो सकता है, क्योंकि इससे बढ़िया मार्केटिंग कोई नहीं है, जो जिसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, और ये सशक्त करने वाले आप ही हो। और इसलिए माध्यम, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह मैच फिक्सिंग जो फिल्म आ रही है उसको सभी तक पहुंचाना, ये आपका भी कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूं, और आप जरूर पहुंचाइए। और सभी दर्शकों को मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि 10 जनवरी को परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म जो है वो थिएटर में जाकर देखिए। आपको निश्चित रूप से एक नया चैतन्य निर्माण होगा ये फिल्म देख के, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। While googling, I got this book, The Game Behind Saffron Terror. बहुत दिनों से इस विषय पे कोई फिल्म नहीं आई है, ऐसा मैं सोच रही थी कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। जब ये किताब मुझे सामने नजर आई, I went through the book and the book had a story. मैंने राइट्स तो ले लिए, एंड फिर एक दिन मैंने केदार को पढ़ने के लिए दे दी। केदार ने दूसरे दिन मेरे को फ़ोन करके बोला 10 पेजेस नहीं पढ़े पल्लवी, इसमें ना मुझे फिल्म दिख रही है। एंड वी जस्ट टुक दिस होल थिंग अहेड। सो आई थैंक कंवर खटाना जी फॉर गिविंग मी द राइट्स एंड चूजिंग मी टू गिव द राइट्स, and also Anuj for converting this book into the screenplay, which was also a very difficult task, and in a very limited period he could come up with so many venues, places and characters कि अभी आप काम चालू करो और मैं screenplay लिखना शुरू करता हूँ। I would hand over to Anuj. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm sorry, I'm coming straight from the airport. Got a little late. You know, I wrote this book
about a year and a half ago. It took me 1 year of research work to write this book and the year to write. I have an intelligence background. I spent major part of my military life in intelligence. I saw terrorism from very close quarters in almost every part of the country, that includes Kashmir, when there were problems there. I was in Punjab when terrorism was at its peak, and I had operated in this environment. I had access to certain information, so I thought the public, the people of India have a right to know how things happened and why things happened the way they did. So I wrote this book. It is a work of fiction for many reasons, some of which I cannot tell you here, but work of fiction notwithstanding. But the major events which you read in the book are available in public domain. You can even Google it and you will find there most of the information which is there. I never thought a movie will be made on my book. In fact, surprisingly, I was contacted by two people from Mumbai, Pallavi being one of them. I spoke to both of them and when I met Pallavi and we discussed things, so I was very sure she is the one who will make a movie and will make a good movie on the book. So that things don't go wrong while shooting about matters military, I embedded a officer with them during the entire shooting. Kal Hemant Aluwali hai. So you will find all these operations which you see here and you will see in the movie are actually the way they happen in the army. You will not find anything amiss as far as the army behavior, protocol, sensitivity goes. I never thought I will see my characters of the book alive on the screen. They came alive. And for that, I must thank the script writer Anuj. He did a wonderful job. The dialogues are beautiful. And all these cast, the director, Kedar, come here. Kedar did a wonderful job. And the hero, effect, come, please. If you see Vineet in the uniform, I could not differentiate that he is not the regular officer of Indian Army. He somehow brought this character 100% alive on the screen. Thank you very much. Thank you. It is a wonderful movie. We had a show on Saturday in Delhi, primarily for the military people. You must have heard of the Agniveers. We called Agniveers who were undergoing training in Delhi, 300 of them. We call GSOs in OAS and their families. And almost 300 officers and their families. Of actors and technicians together was a Herculean task because we have 138 artists in the film, so many technicians, so unit was big and everybody stood behind me like a rock, supported me, my vision, Pallavi's vision, and I hope, sir, Katana sir, I hope we've done justice to your book. I hope. Yeah. And I would like to thank all my team members over here and really thank you so much. आप जो कुछ बोले लेकिन वो डायलॉग बोलना ना भूलिएगा क्योंकि वही हम सब सुनना चाहते हैं। पूरी फिल्म के तो सारे के डायलॉग आई एम नॉट जो बोलना था कैमरे के आगे बोल दिया।
अब बारी आप लोगों की है। आप देखिए, बोलिए, लिखिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए, क्योंकि अब बॉल आपके पाले में है। तो मुझे जो आता था मैंने कर दिया। मैं केदार को थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू केदार, एंड डोंट बी सो मॉडेस्ट। अभी केदार ने बोला कि बिना टीम के चीज़ें, हाँ टीम के बगैर चीज़ें नहीं होती, मैं अग्री करता हूँ, लेकिन कोई भी सेना बिना सेनापति के कोई बड़ी चीज़ नहीं कर पाती, बिखर जाती है, क्योंकि उन्हें संभालने वाला कोई होता नहीं। तो अगर डायरेक्टर विजनरी है, डायरेक्टर को चीज़ें दिख रही हैं, समझ रही हैं, तो हम लोग एज एन एक्टर डायरेक्टर को सुनते हैं और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सो थैंक यू सो मच केदार, एंड थैंक यू पल्लवी। मैं बड़ा फैन हूँ मनोज भाई का और बहुत सारा काम देखा है। थैंक यू सो मच मनोज भाई फॉर सेइंग यस टू दिस फिल्म। मौका नहीं मिला इस फिल्म में हमें एक साथ फ्रेम शेयर करने का, लेकिन ये मलाल लेके जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये मलाल मुझे चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंडिंग के साथ किसी फिल्म में मिले। इस फिल्म के बाद मैं विनीत का फैन हो चुका हूं, मैंने उसका काम देखा है, लेकिन इतना अद्भुत काम किया है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि परफॉर्मेंस, मतलब हम सब आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, लेकिन इतनी जान डाल दी है उसने अब किरदार में कि वो आपके मनोमस्तिष्क पर सवार होता है वो किरदार पूरी फिल्म। एंड सारे कलाकारों ने अद्भुत काम किया है, क्योंकि अभी ये धीरोदात्त नायक है इस फिल्म का, तो मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ विनीत। थैंक यू वेरी मच, यू डिड अ एक्सेलेंट जॉब। थैंक यू सो मच मनोज भाई, coming from you means a lot, and so Because of him, the trailer is looking so grand. Please, Devin. अरे फिल्म के कलाकार जब स्टेज पे आ रहे हैं, फिल्म से जुड़े लोग, तो ये स्टेज छोटा पड़ रहा है, स्टेज को बड़ा बनाते हैं। Just one moment. I wanted to have a word about Raj भाई। राज अर्जुन सर ने ये फिल्म में इतनी जान डाली है, आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। सर, he was so passionate on sets. At times, just to stay in the zone, he skipped his lunch, he skipped his dinners, reached on set 2 hours prior. So, I am really fortunate, Raj sir, to have you. फिर लंदन और इस्तांबुल में जो हमने मॉन्टाज क्रिएट किए हैं, उसमें मैंने उनको बोला था कि आपको बहुत चलना है, तो डेली एवरेज हमारा 15 से 20 किलोमीटर चलने का होता था। हम लोग इतना चले हैं, इतना चल के शूट किया है। He did not utter a word. He was so passionate on set, and so is all the actors. But I had to mention Raj sir over here.